those who just joined, we are about to start actually. So can you see my screen, this PPT? Okay. Yeah. So RSI का meaning क्या है? Relative Strength Index basically. So it shows that how relative is the strength in the market comparing to some particular day, time, whatever time frame you choose. जो भी आपको time frame choose करना है, उसके against में मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, अदर मार्केट मूविंग स्ट्रेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव में. सो आरएसआई इस चीज को इंडिकेट करती है कि स्ट्रेंथ क्या है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वट एवर यू चूज बेसिकली. So before we go to the detailed discussion, disclaimer, it's not a buy and sell advice or anything like this. We are here for the purpose of learning, and equity commodity अपने आप में risk होता है everybody. So before taking any trade, consult your financial advisor. So I'm not here to advise any particular share or any buy or sell recommendation. We are here just for a discussion, for learning. So let's start with the what is the fact with RSI. RSI है क्या? Those who are pretty new, those who don't understand RSI का मतलब क्या है, RSI का uses क्या है, RSI fundamentally क्या represent करती है. So let's go through some facts actually. RSI एक तो किसी भी टाइम फ्रेम पे वी कैन यूज RSI. RSI कैन बी यूज फॉर वीकली, मंथली, डेली, आवरली, 30 minutes, 5 minutes, 10, 15, depends on what time frame you want to use it. RSI can be used for all kind of a time frames. So it's not RSI can be used for a longer time period, RSI can be used for a shorter time period. So depend on your psychology, your understanding, your requirements. You can tweak RSI according to your rule, and whatever rule we are going to discuss, they are all applicable on all kind of a time frames, whether it's a 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, monthly, weekly, yearly also. So let's be very clear. So RSI can be used for all time frames, and along with that, RSI can be used for all markets. So whether it's a commodity market हो, चाहे ये share market हो, equity market हो, गोल्ड हो, किसी भी तरह का करेंसी हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मार्केट एक्चुअली. सो ऐसा नहीं है कि आरएसआई को सिर्फ आप इक्विटी के लिए यूज कर सकते हैं. आरएसआई कैन बी यूज फॉर ऑल मार्केट. इनफैक्ट एंडू एंड आई यूज टू यूज आरएसआई फॉर गोल्फ का जो पीजीटीआई मास्टर होता है कि who's gonna win actually. So we used to basically discuss lot who gonna win this year PGTI master, whether it's a Tiger Wood or somebody else. So we used to basically, I think somebody is trying to join. Okay, are you guys here? Can anybody confirm? Yeah. So RSI को we can use for any kind of market, whether it's a currency हो, चाहे the future market हो, चाहे it's index हो. It can be used for all kind of market, all kind of data. As long you have a chart, we have a RSI to. I think this all latecomers are bothering. Okay, and RSI along with the time frame with the all market, it's used for identify trend basically. मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है, हमें ये नहीं पता होता है कि हमने कुछ चीज बाई तो कर ली, वी बॉट समथिंग बट वी डोंट नो व्हेन टू एग्जिट. ओके, लेट्स से यू बॉट आईटीसी, नाउ इट्स गोइंग अप एंड अप एंड अप, and maybe other shares actually. So but we don't know when to exit actually. So whatever you buy, you have to sell one day, na? Maybe year, maybe day, maybe month, or maybe depend on your. If you are a day trader, you're gonna sell it today itself. If you are a long-term trader, you're gonna sell after a year. So maybe everybody has their own time frame, but we should know when to sell it. Okay, this market is not favorable anymore. This we are in uptrend, now we are changing a trend to downtrend. So there's no point of keeping your assets actually. So you need to get rid of them. You need to be very careful. और जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चेंज हो रहा है, सो इफ यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, लेट्स से इन सम, oh my god. Okay, so
अगर मार्केट में कोई ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है तो उसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करें, हम इस ट्रेंड से निकल जाएं। अगर कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसको वी हैव टू मॉनिटर द ट्रेंड। ओके, वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड, लेट्स मॉनिटर, देयर इज नथिंग टू डू, लेट्स से अप ट्रेंड गोइंग ऑन and you don't want to do anything, you just want to see your investment going up and up, so you just monitoring the trend। और अब कब ट्रेंड चेंज होने वाला है and when is about to change, so RSI can give you early indications। Okay, that now the market is exhausted, now the trend is about to change, whether it's a downtrend to uptrend or whether it's a uptrend to downtrend। Agree? Look exciting? या सो RSI एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको एक फुल फ्लेज एक ट्रेडिंग सिस्टम की तरह डेवलप किया जा सकता है। वी कैन डेवलप अ फुल फ्लेजेड RSI based system, and I just know RSI, happen to know RSI, I don't follow any other indicator, I don't put too many indicators, and also so I am totally completely RSI based trader, and I'm a successful trader, so you can also be successful on the base of RSI। So RSI is complete itself, but momentum indicators, it gives the momentum, it gives the sentiments, everything it's there, so you can use RSI as a full-fledged a trading system। But things don't come so easily, you have to practice, you need to know what is RSI, you have to understand in depth basically। Let's go to the next one। So RSI है क्यों इतना important basically? So ऐसा RSI में क्या है? Because RSI का इंडिकेटर जो है जस्ट नॉट अ प्राइस एक्चुअली। सो इट कंसिडर मोमेंटम, it considers the price, it considers the time, it considers sentiment, so it's a combination amalgamation of many things, so that's why RSI itself a complete package। so RSI को आप किसी अगर आपको अच्छे से एक RSI आती है, so you don't need any other indicator to work for। RSI itself is a complete package, it considers the price, it considers the momentum, it considers the time, it considers sentiment, so everything is there। that's why whenever RSI gives some kind of output, it is basically a full-fledged a combination many things, and it itself is a complete indicator। so RSI अपने आप में एक complete indicator है, इसको आप पूरे सिस्टम की तरह यूज कर सकते हो, बट हाँ आपको आना चाहिए कि किस तरह से उसको यूज करना है, बिकॉज half knowledge is dangerous। by the time you don't understand it deeply, you won't be able to appreciate what good RSI can do for you। अच्छा, RSI कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो आजकल तो सब कुछ सिस्टम से कैलकुलेट हो जाता है, बट फॉर द बेनिफिट, बिकॉज वी हैव बीन अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वी आर ऑल एजुकेटेड, सो हमें कुछ भी समझ में आना चाहिए कि RSI है क्या। जब तक यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, यू वोंट अप्रिशिएट ओके ये कहानी चल क्या रही है, RSI इतना इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल क्यों है। सो RSI इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट होता है। कैन यू Are you able to see my screen again? Still there is no lagging or anything? Okay, so because okay, so do let me know whenever you feel any problem। So RSI कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है? सो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको कुछ रटने की या कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हमें समझ में आना चाहिए RSI की कहानी चल क्या रही है। व्हाट इज बेसिकली फंडामेंटल साइकोलॉजी अबाउट RSI। सो RSI जो सिस्टम में आप जब भी देखेंगे तो RSI का जो भी नंबर आता है 40, 50, 60, 70, 80, 10 YG, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, जो भी नंबर आता है वो इस फॉर्मूले से सिस्टम आपका कैलकुलेट करता है। आप कोई भी ट्रेडिंग टूल यूज करते हैं, ट्रेडिंग व्यू, निंजा ट्रेडर, XYZ, वट एवर यू आर यूजिंग, सो सिस्टम आजकल तो एंड्रू जब अलाई थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो रोज पेन पेंसिल से इसको कैलकुलेट करते थे, रोज एवरी डे का ये he used to calculate। So Andrew was a PhD in economics, so he used to calculate and draw manually because there was no computer actually 40 years back, so he used to calculate everything through hand actually and plot in a manual graph papers। इसमें क्या है, 100 minus 100 something divide by 1 minus, so just give a focus here, why is this momentum and basically sentiment का game क्यों है? It takes the average of n closing up, जो क्लोजिंग हाई होता है ना, जैसे कोई भी कैंडल होती है, लेट मी शो यू, ये जो कैंडल्स चल रही है कहानी यहाँ पे, इसका जो हाई होता है, एक किसी भी कैंडल में चार चीजें होती
थोड़ा बड़ा करने दो। ओके, सो इस किसी भी कैंडल में चार चीजें होती हैं। एक कैंडल है, इसमें एक लो बनेगा, एक में हाई बनेगा, इसमें ओपन है, क्लोज है। एवरीबडी एग्री ना, इफ यू नो ट्रेडिंग, सो इतना तो सबको बेसिक पता हुआ है, कैंडल में चार चीजें होती हैं। एक एक दिन में कब ये क्लोज हुआ, कितना इसने हाई बनाया, कितना इसने लो बनाया, और कहाँ पे ये क्लोज हुआ। दिस इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कैंडल और अ साइकोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर डे। सुबह पर्टिकुलर डे पे खुलेगा, कितना हाई जाएगा, कितना लो जाएगा, और कहाँ पे बंद होगा, ये एक कैंडल को फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टू कैंडल फॉर्मेशन। एग्री। इसमें आरएसआई क्या करता है, आरएसआई जो भी हम लोग एंड डेज, लेट्स से आप आरएसआई 14 है, तो पिछले 14 डेज का, लास्ट 14 डेज एवरेज ऑफ एन 14 डेज क्लोज अप डिवाइड बाय एवरेज ऑफ एन डेज क्लोज डाउन बेसिकली। सो ये अप एंड डाउन का जो एवरेज निकल के जो एक फॉर्मूला आता है, ये दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड दिस इज 100 माइनस कॉल्ड आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली। इस सबको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपने एंड डेज 14 डेज का निकालना है, आरएसआई 3 निकालना है, 14, जो भी आप नंबर दोगे उसका 14 दिन का, 14 डेज का, 13 डेज का, वट एवर नंबर यू वांट टू गिव, अप टू यू व्हाट नंबर यू वांट टू डू, यू कैन कैलकुलेट आरएसआई एनी नंबर्स। एक्चुअली वी विल डिस्कस व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल नंबर फॉर दैट एक्चुअली। सो जब आरएसआई से निकलने के बाद एक नंबर मिलेगा आपको, नंबर ऑफ, इसे में एन क्या है, नंबर ऑफ डेज है, 14 डेज, 15 डेज, 20 डेज, वट एवर नंबर यू वांट टू कैलकुलेट। and RSI fundamentally can be calculated for any days actually. It could be 3, 5, 7 for shorter time. Let's say कोई डे ट्रेडर है जिसको बहुत शॉर्टर टाइम के लिए हो, तो RSI 3 यूज कर सकता है, 5 यूज कर सकता है, 7 यूज कर सकता है, 9 यूज कर सकता है। सो इस तरह से डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग टाइम, यू कैन यूज RSI बेसिकली। जैसे जो फंडामेंटली जो यूज करते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, उसमें 7, 9 एंड 14 इज यूज फॉर इंटरमीडिएट एक्चुअली, 14 and 20 for longer period. If you want to some people use for commodity 25 or for even 45 also, बट सब कुछ एक ही तरह का एम्पलीट्यूड और डेटा देंगे, बट दे बिकम अर्ली एंड लेट ओवर बॉट एंड सोल्ड, सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड जो है। ओके, सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ साइकिल्स, बट सारी रिसर्च करने के बाद ये ऑप्टिमाइजेशन हुआ कि RSI 14 इज द बेस्ट सुटेड फॉर द ट्रेडिंग बेसिकली। यू कैन यूज वट एवर यू वांट टू यूज, बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ एंडू से डिस्कशन करने के बाद 14 RSI 14 जो है बेस्ट सुटेड आया। उसका एक फंडामेंटल डिस्कशन, जो कोई इसका कोई लॉजिकल आंसर वी कुड नॉट फाइंड, बट आफ्टर हैविंग ए डिस्कशन विद माय मेंटर डॉक्टर एंड्रू कार्डवेल, सो हमें ये लगा कि 14 इज द मिड ऑफ द मंथ एक्चुअली। 15 दिन का साइकिल इधर होता है, 15 दिन का उधर होता है, सो टेकिंग एवरेज ऑफ 14 डेज, आई थिंक 14 सीम्स टू बी दैट्स अ लॉजिकल वे। but ये this logic may not be correct, but this is how we understood, but I didn't go on that discussion why 14। मेरा एक्सपीरियंस क्या होता है, I use 14 as a default parameter for my analysis, so I use RSI 14। so RSI 14 is a 14 days का अप डिवाइड बाय 14 डेज का क्लोज का जो फॉर्मूला निकलने के बाद एक RSI आपको, हमें यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। सो जब ये नंबर मिलेगा, तो एक नंबर, लेट्स से हाइपोथेटिकली इस फॉर्मूले के बाद एक इंटीजर नंबर आएगा, बिकॉज ये कुछ कुछ फॉर्मूला कुछ भी डालोगे तो आप करके एक इंटीजर एक नंबर आपको निकल के आएगा, या कोई नंबर निकल कर, लेट्स नॉट गो विद इंटीजर, दैट नंबर विल कम, it could be integer, it could be a float or something. Hope everybody understand integer, float and all those stuff, the computer basic fundamentals and mathematics and so let's say उसमें assume करो आपको जीरो तो नहीं आएगा, खैर कोई नंबर, लेट्स से जीरो से मान लेते हैं, जीरो से 95 या 100 के बीच, जीरो से 100 के बीच में आपको एक नंबर मिलेगा, दैट विल RSI। हाइपोथेटिकली यू विल गेट वन नंबर which could lie between a 0 to 100। ठीक है, सो जब आप, लेट मी शो यू हियर, यहाँ पे ये RSI 14 है। सो हर दिन के मूवमेंट के बाद, लास्ट 14 डेज के एवरेज के बाद
यहाँ पे कुछ कुछ नंबर आता रहेगा 75.2 समथिंग समथिंग एक्स वाई जी। एवरी डे रिप्रेजेंट टू लास्ट 14 डेज की स्टोरी, कौन सा अप था कौन सा डाउन था, कितना हाई बना कितना लो बना, उसके बेस पे वी कैलकुलेट वन नंबर एवरी डे ओवर हेयर हेयर। कल जो भी 14 हाई मिला लास्ट 14 डेज का जो भी यहाँ से एवरेज रहा होगा उसके बेस पे समथिंग केम अप। अगर आप देखोगे अगर बहुत ज्यादा मूव नहीं है तो एक फ्लैट सा आरएसआई बनाएगा, बहुत बड़ा मूव है तो यहाँ पे ये मिलेंगे आपको, स्पाइक्स मिलेंगे। सो डिपेंड ऑन द साइकोलॉजी मोमेंटम एंड किस तरह से प्राइस ने बिहेव किया लास्ट 14 डेज, और लास्ट 14 डेज में प्राइस का कितना बड़ा मोमेंटम है, उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉर्म करेगा। द स्ट्रक्चर विल फॉर्म अकॉर्डिंगली ओवर हेयर। जब आपने आरएसआई को जो इस फॉर्मूले के साथ हमें कोई आरएसआई मिल गया, नंबर मिला जैसे एक्स वाई जी, आपको डेली एक नंबर मिला, और अब इस आरएसआई का करें क्या। एक हमें नंबर तो मिल गया लास्ट 14 दिन का 14 डेज का, जैसे अगर आई एम यूजिंग लास्ट 14 डेज एज ए मूविंग एवरेज, सो इनपुट फॉर दिस आरएसआई कैलकुलेशन। लेकिन इस नंबर का करें क्या, व्हाट शुड वी डू विद दिस पर्टिकुलर नंबर। इस नंबर को लॉजिकल कंक्लूजन लेने के लिए डॉक्टर एंड्रू कार्डवेल ने एक थ्योरी एस्टेब्लिश किया कि इसको हम लोग ओवरसोल्ड और ओवरबॉट की बजाय हम लोग वी कैन यूज इट फॉर अ मोर वाइडर पर्पस, मोर बेटर पर्पस, फॉर बेटर थिंग्स। सो उन्होंने क्या किया, इस नंबर के बेस पे कि आरएसआई कहाँ पे फ्लोट कर रही है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, आरएसआई का फ्लोट क्या है, किस रेंज में मूव कर रही है। उसके बेस पे उन्होंने कुछ ट्रेंड रूल, आरएसआई ट्रेंड रूल्स बोलते हैं, रेंज रूल्स बेसिकली, विच यूज फॉर अ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड चल क्या रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में साइड वे है। उन्होंने थ्योरी को एक स्टेब्लिश किया। एवरीबडी ऑन द सेम पेज? You guys can hear me now? Yeah, I just wanted to confirm I'm not the alone one talking and you guys lost the connection, so I just wanted to make sure. Okay. उसके बाद इन सब के बाद एक नंबर निकल के आएगा, देयर इज अ नंबर बिटवीन सम नंबर के। सो based on that number we try to identify the trend basically. This was the main topic, before was the theoretical thing, whatever we discussed, because there were few new people we don't understand RSI, maybe some people which have gone to some PDF they got from some friends, maybe some pirated one, some and somebody using, so they know RSI. But those who were new, so I try to explain everything, what is the fundamental story behind RSI basically. अब आपको एक नंबर मिल गया जो जो डेली मिलता है आपको, एक नंबर एवरी डेज का, बिकॉज एवरी 14 डेज कीप मूविंग ना। आज 15 दिन हो गया तो 14 डेज का लास्ट 14 एक निकलता चला जाएगा ना, बिकॉज द सी ओवर हियर। सो एवरी डे द न्यू 14 डेज का एवरेज यहाँ पे आता रहेगा, यहाँ पे लास्ट 14 डेज की स्टोरी यहाँ पे बनती रहेगी। दिस दिस फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला which this system might be using to calculate all these things. Based on the input automatically लेगा कि what is a high, and a close high, then close down, and based on the time that RSI number will be calculated. इसको अब हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल कंक्लूजन के लिए कि लॉजिक हाउ टू यूज दिस नंबर अदर देन overbought and oversold, which is a basically fundamental and wrong concept in India, to overbought and oversold basically. 60 cannot be overbought and 40 cannot be oversold actually. So overbought can be much higher up to overbought, oversold can be much lower for oversold. So 60-40 is the right number. That's the wrong way to calculate overbought and oversold. Actually, story starts with 60 and 40. I'll prefer to buy a share which on 60 rather than I prefer to buy a share at 40 basically or 20. RSI को ट्रेंड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? अगर जैसा मैंने बोला कि आई यूज RSI 14 एज अ डिफॉल्ट फंडामेंटल डिफॉल्ट पैरामीटर, आई यूज RSI 14 बेसिकली। अगर मेरे किसी भी चार्ट में आप देखेंगे तो दिस इज RSI 14 बेसिकली, आई यूज RSI 14 एज अ डिफॉल्ट वन। जब ये RSI 14 मिला, जब भी RSI 14 80-40 की रेंज में ट्रेवल कर रहा, दैट्स uptrend basically, 80-40 as an uptrend. Whenever just give attention over here, जब RSI 80-40 की रेंज में मूव कर रहा तो we call this uptrend. Give attention over this statement, 80-40 is uptrend.
जब 80-40 के रेंज में अप ट्रेंड करेगा, जब सेल ऑफ होगा, सो 40-35 लेवल पे दैट्स बिकम ए ओवरसोल्ड बेसिकली. 40-45 become oversold, then you around this number you may see opportunity to buy. Okay, oversold हो गया, this is the time where we may look for opportunity to buy actually based on other parameters. Some use candlestick, some may use there's a divergence and NRPR. That's a separate story altogether. That's a different topic actually. That's a wider topic actually to discuss. So today here we are here to discuss just the range rules, which is uptrend and downtrend. So 80-40 के बीच में जब भी RSI ट्रैवल करेगा, we'll call it a uptrend basically. 60-20 के बीच में जब भी RSI का ये नंबर ट्रैवल करेगा, that's we call downtrend basically. उस केस में जब 60-20 करेगा, इट 60-65 जाते ही मोमेंटम का गैस निकल जाएगा एंड इट बिकम ओवरबोट एंड यहाँ से सेल ऑफ होना चालू हो जाता है. यहाँ से वी लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू sell or opportunity to do nothing, depend on the what kind of a trader you are. You just only buy only, or then you will not do anything, or you will just stay away from the market, depend on your psychology, your plans and all. So जब भी RSI 60 के आसपास आएगा तो वी विल सी लोअर हाई एंड जब भी 40 के आसपास आएगा वी विल सी लोअर लो बिकॉज दैट्स अ डाउन ट्रेंड बेसिकली. सो क्या नंबर निकल के आया? 80-40, जस्ट नोट इट डाउन. 80-40 इज अप ट्रेंड, 60-20 इज अ डाउन ट्रेंड बेसिकली. 80-40 का डाउन अप ट्रेंड चल रहा है, सो अप ट्रेंड में क्या करोगे आप? बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो 80-40 पर जब अप ट्रेंड चल रहा है तो यू शुड ऑलवेज, अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड. जब 80-40 के ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पे सेलिंग की बजाय हमें बाय करने में शायद ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज वी आर इन अप ट्रेंड, वी आर इन विद familiar with the trend, so we are basically trading in a in line with the basically uptrend. 80-40 वाला रेंज में हमें जब भी डाइवर्जेंस जब ऊपर से नीचे आएगा तो मोमेंटम बहुत कम होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा बिकॉज वी आर इन अप ट्रेंड, सो हमें हैविंग लार्जर अपॉर्चुनिटी टू गेन rather than a shorting opportunity. जब हम 60-20 में जाएंगे तो हमें, बिकॉज दिस इज अ डाउन ट्रेंड, हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटी मिलेंगी, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलेंगी बिकॉज वी आर इन डाउन ट्रेंड बेसिकली. सो जब आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे बिकॉज यू आर इन लाइन विद द ट्रेंड, सो यू आर नॉट गोना मेक मिस्टेक. ओके, तब आप ये नहीं कहोगे कि नहीं यार मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मैं बाई करता हूँ थोड़ा सा बढ़ के नीचे गिर जाता है, जब भी मेरी किस्मत खराब है मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ. बिकॉज यू आर बाइंग एंड सेलिंग इन अ डिफरेंट जोन एक्चुअली. यू आर selling an uptrend, then you will definitely go wrong. If you are buying in a downtrend, you will definitely go wrong. So we need to align our trading psychology, trading principles, or finding shares based on the range rule. हमें 80 40 के बीच में कोई मूव कर रहा है तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटी को देखना है. हमें 60 और 20 के बीच में कुछ चीज RSI मूव करनी है तो हमें पेशेंस रख के हमें सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है. जब 80 और 40 के बीच में लेकर 40-45 आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. यहाँ पे हमें शायद बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. 80 और 40 के बीच में कुछ हो रहा है तो हमें 40-40 के आसपास देखना चाहिए कि हमें शायद बाई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. 60-20 के बीच में चल रहा है तो 60-65 के बीच में हमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एग्री? अब हम कैसे कर रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, लेट्स से आप अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में, तो ये बार बार से 80-40 वाला रेंज चल रहा है लेकिन बार बार 70 के आसपास जाके मार्केट गिर जा रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है 40 के आसपास. ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जस्ट नोट इट डाउन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेंड में हम कैसे अर्ली, अगर कुछ लोग मुझे फॉलो करते होंगे कुछ महीने से या ईयर से, सो कभी कभी मैं वार्न करता हूँ कि मार्केट का गैस खत्म होने वाला है, अब हम लोग वी आर अबाउट टू डाई एंड वी आर अबाउट टू सेल ऑफ एक्चुअली टू द मार्केट. सो आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन माय very rude kind of a very as a statements. Okay, market is going slow, going on a slow, market is going to up basically. So I basically observe behavior during near these numbers actually 70-45 के आसपास. जब हम वाले इस ट्रेंड में हैं, लेट्स से बोल, अगर हम इस ट्रेंड में हैं 80-40 वाले, लेकिन एवरी टाइम 70 के आसपास जाके मार्केट इज फॉलिंग, so then we said अब ट्रेंड चेंज होने वाला. एवरीबॉडी नाउ दैट वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम 80-40 टू 60-20. हम डाउन ट्रेंड में हैं तो RSI 20 और से उसके आसपास ना जाके 40 के आसपास अगर रीटेस्ट कर रही है बार बार,
हमें लगता है कि अब ट्रेंड जो है डाउन से अप होने वाला है. वी आर शिफ्टिंग ए रेंज एक्चुअली. वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम 80-40 टू 60-20 or 60-20 to 80-40. This is the early sign basically. So you can inline yourself with a big move. Okay, you know अब ट्रेंड अलर्ट करने का समय आ गया है, ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब बाइंग है तो हमें अपनी पोजीशन को, अगर हम 80-40 की रेंज में घूम रहे हैं, अगर 70 के आसपास इस बेसिकली लॉवरिंग गैस बेसिकली मार्केट इज लूजिंग मोमेंटम, सो हमें अपनी पोजीशन को ढीला करना है. वी शुड बी वेरी टाइट ऑन द स्टॉप लॉस. अगर हमें 60-20 वाली रेंज में घूम रहे हैं और बार बार 45 हिट हो रहा है, सो मीन्स हम लोग अपनी अब दिस कुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस कुड बी ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट बेसिकली. सो आपको अर्ली साइन मिलने चालू हो जाएंगे अगर इफ यू नो आरएसआई वेरी वेल कि अब जो है हम लोग के बुरे दिन चालू होने वाले हैं या बुरे दिन स्टार्ट होने वाले मार्केट के. दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड बेसिकली. अर्ली साइन की मार्केट अब रेंज शिफ्ट करने वाली है या मार्केट अपना मोमेंटम चेंज करने वाली है, मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली है. सो दिस इज हाउ द मेन important range rules are basically. So RSI just not the overbought oversold, it's a much more than that of that particular statement. RSI can be used for a range. RSI range can be used for a आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड कि हम अप ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में हैं, अब हमारा ट्रेंड जो है अप से डाउन होने वाला है या डाउन से अप होने वाला है. RSI can be a full-fledged tool to identify that. I don't know if any other tool can give so much of clear indication like RSI can do. Agree, guys? So everybody understood? Any questions right now? You're all good. So now it was all theoretical part. Let's see and a few charts basically. Shall we move to charts? Yeah. Okay. Let's see. Hmm. क्या करें? Moving averages. So RSI is a very larger subject. We are discussing the range only. So RSI is a very range subject. If I teach a few students, so I take 4 to 6 weeks to clear entire RSI basically. So don't go on that. Actually, that's a separate topic altogether. Maybe we can discuss some other day about all this thing. Let's focus on range rules today. Oh, okay. So हम लोगों ने डिस्कस किया रेंज रूल. अगर पहली बात जब भी आप कोई लेसे इफ यू गिव मी फर्स्ट चार्ट द बिगिनिंग ऑफ द डे, मैं पहला काम करूंगा, मैं इसकी रेंज देखूंगा, विच रेंज वी आर फ्लाइंग राइट नाउ. अगर मैं कुछ भी आप मुझे कुछ भी नंबर देंगे, लेट्स से एक्स वाई जी, रिलायंस और मे बी आईटीसी वॉट एवर इट इज, मैं पहला मेरा पर्पज होगा मैं इसकी रेंज देखूं, मेरी आरएसआई किस रेंज में मूव कर रही है. आरवीएन 80-40 वाला रेंज में है या हम लोग 60-20 वाला रेंज में है. सो आई फर्स्ट थिंग आई सी इन द चार्ट इज अ रेंज एक्चुअली. कल मुझे कोई भी इंडिकेशन मिलेगा या जब मैं ट्विटर पे डालता हूँ कि कोई चार्ट एनालिसिस कर, तो फर्स्ट थिंग आई सी विच रेंज वी आर इन. सो लेट्स चेक 80-40 कहीं से भी देखो, दिस इज 80-40 वाला रेंज here. Everybody agree? Market has a some sell off, eventually it went up, and we every सेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी वाज द बाइंग अपॉर्चुनिटी. सेलिंग में मोमेंटम कम है, बाइंग में ज्यादा है. थोड़ा सा सेल होता है ऊपर जाता है, सेल थोड़ा सेल होता है ऊपर जाता है, थोड़ा सा सेल होता है ऊपर जाता है, बिकॉज वी आर इन अप ट्रेंड बेसिकली. अगर आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल पता लग जाए, अगर मैं वो आपके पास कुछ भी नहीं है, ना मूविंग एवरेज है, ना आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप किसी तरीके से ट्विटर के थ्रू या किसी के थ्रू मान लिया शेयर मार्केट में घुस गए, आपने कहीं पे बाई कर लिया,
आप इस तरीके से इस ट्रेंड को पूरा एंजॉय कर सकते हो, बिकॉज यू नो वी आर इन स्टिल अप ट्रेंड, इट्स ऑल फेक सेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, इवेंचुअली 60-40 के आसपास ओवर सोल्ड हो जाता है ना, मैंने बताया था 40-45 के आसपास ओवर सोल्ड होता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, सेल ऑफ हुआ थोड़ा सा, फिर सेल ऑफ है, एवरी सेल ऑफ वाज द अपॉर्चुनिटी टू ऐड योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, सो यू कैन राइट द एंटायर लॉन्ग मूव ना, विदाउट हैविंग एनी कंफ्यूजन। तो अभी आपको, अगर आपको रेंज रूल पता है, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग, मैं निकलूं क्या करूं यार, मेरे पास शेयर है, मैं कब निकलूं, कब इसका, हम लोग निकलेंगे जब ट्रेंड चेंज होगा, विल सी व्हेन इट हैपन, या 60-40 के आसपास एग्जॉशन चालू हो जाएगा, विल सी व्हाट विल हैपन, आईटीसी इज स्टिल इन अप ट्रेंड, every opportunity is a buying opportunity, every selling opportunity is a pullback, it's not a trend change opportunity, simple. सो इसमें आपको किसी का देयर इज नो कंफ्यूजन, जस्ट सिंपल है, 80-40 वाली रेंज में मूव कर रहा है, एवरी पुल बैक इज अपॉर्चुनिटी टू ऐड बेसिकली। हम लोग हर अपॉर्चुनिटी पे सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, जैसे नीचे आएगा, मान लिया आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको इन्वेस्ट करना है, या सिप कर रहे हो आप लोग, मंथली सिप कर रहे हो, या डेली सिप कर रहे हो, या वीकली सिप कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे हम लोग डाउन ट्रेंड जैसे ही आएगा, यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, विल नॉट बाय द टॉप, विल बाय द लोअर, बिकॉज एवरी पुल बैक अपॉर्चुनिटीज टू एडिंग अपॉर्चुनिटीज। सो वो दूसरा टॉपिक है कि पुल बैक क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्जेंसीज बोलते हैं, सो वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट टॉपिक टुडे, दैट्स अनदर सब्जेक्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पे हम लोग रेंज रूल में देखेंगे, 80-40 में शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर चलता चला गया, 80-40 की रेंज में हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 80-40, 80-40, 80-40, सब 80-40 के बीच में चल रहे हैं हम लोग, एग्री। और आरएसआई हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, कि हर बार एक नया हाई बनाता है, पुल बैक होता है, फिर ऊपर चलता हुआ चला जाता है। अब देखते हैं, जब ये शेयर मार्केट आईटीसी बहुत बुरे दौर से भी गुजरा था ना, कई साल तक ऐसे ही रहा था जैसे रहा था 60-20 वाला रेंज में। लेट्स कम टू द डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का कमाल यहाँ पे देखिएगा, दिस इज अ 60-20 वाली रेंज आ गया ना, मोस्टली 70 के आसपास यहाँ पे एग्जॉशन होना चालू हो गया, जो मैं बोला था कि ट्रेंड कब चेंज होने वाला, अब यहाँ पे 70 के आसपास ना, हर बार 70 के आसपास जाके मार्केट जो है टच कर रहा है, जा रहा है, टच कर रहा है, जा रहा है, टच कर रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पे इसने गैस को खत्म कर दिया, मोमेंटम इज ऑलरेडी लॉस्ट एक्चुअली। तो इस सब कंडीशन में व्हेन यू आर अ गुड ट्रेडर, यू बिकम अलर्ट ओवर, ओके मार्केट में कुछ सही नहीं है यार, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, कि मार्केट एवरी टाइम टचिंग 70, 66.7, अराउंड 70 के आसपास जाके मार्केट टच हो रहा है, नीचे जा रहा है, टच हो रहा है, नीचे जा रहा है, साइड में मार्केट चल रहा है, एंड इवेंचुअली इट्स लॉस्ट द मोमेंटम एंड प्राइस फॉल फ्रॉम 180 to 130, 125, एंड रेंज ऑल्सो शिफ्ट, नाउ वी आर इन 60-20 वाला रेंज में आ गए, यहाँ पर रेंज शिफ्ट किया इसने, प्राइस मूव फ्रॉम 60-20 टू 80 वाला रेंज। और पीछे देखते हैं यहाँ पे, this was the biggest move ITC had actually. So again 60-20 and see the move and see the range is 60-20 only. Agree? Everybody agree over here? Everybody on the same page? So you don't need magic in the market, okay? Simple things, simple चीजों से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो, यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन दिस सिंपल रूल, ओके। जब हम लोग यस बैंक में, आप लेट्स टेक एग्जांपल, व्हाई, सो अगर आपको रेंज रूल पता है, इफ यू नो द रेल, यू वोंट नॉट एवरेज इज दिस ना, एवरेज तो नहीं करोगे ना, बेवकूफ तो नहीं है ना, हम लोग एवरेज करेंगे जब डाउन ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो गया, सब कुछ हो गया, कोई कुछ भी बोलता रहे कि आईटीसी अच्छी कंपनी है, व्हाई ब्लडी आई विल डू द एवरेज ओवर दैट, जो लोअर हो रहा है वो और लोअर जा सकता है ना, आप यहाँ पे एवरेज करोगे तो लॉस में रहोगे, यहाँ पे बाई करोगे तो लॉस में रहोगे, यहाँ बाई करोगे लॉस में रहोगे, सो बिकॉज इट्स इन डाउन ट्रेंड, यहाँ से बाई करना चालू करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज द ट्रेंड इज शिफ्टिंग। सो फर्स्ट ट्रेंड के बाद शिफ्टिंग कहाँ पे आई, यहाँ पे रेंज शिफ्ट कर दिया इसने, इट्स नाउ इन 80-40, आके फिर इसने डाउन ट्रेंड मोमेंटम लूज किया, फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। सो कहाँ पे नहीं बाई करोगे, यहाँ पे नहीं बाई करोगे ना, एवरेज नहीं करोगे ना, बिकॉज दिस इन अ डाउन ट्रेंड, बेसिकली वी आर इन डाउन ट्रेंड, प्राइस मूविंग लोअर लो, RSI making lower low, so when we are in 60-20, 60-20 is not a buying range, so we will stay on the market। अगर हम गलत ट्रेंड में भी हैं तो यहाँ पे एवरेज नहीं करेंगे, every average will be a loss making average, loss making सौदा। पीछे चलो किसी कहीं पे भी बाय, हिस्टोरिकली चलते जाओ, 80-40, 60-20,
again 60-20, and price start falling. Everybody agree? सो इस तरह से हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई को, इस नॉर्मल आरएसआई से हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वी कैन बी ऑलवेज इन लाइन विद आवर ट्रेड विद द मार्केट एक्चुअली, वेयर द मार्केट इज मूविंग. सो अब लोग एटलीस्ट इस क्लास के बाद आप इस वाली गलती को तो नहीं करोगे. यू विल नॉट बाय इन दिस रेंज ना, दिस रेंज यू विल नॉट बाय, and you will not sell in this range na. You will see the opportunity to add more shares na, बिकॉज आपको ये पूरा मोमेंटम जो ये चल रहा है इसको एंजॉय करना है, तो यू कीप एडिंग ना. सो हम लोग क्यों अभी तक 60-70% प्रॉफिट में बेचे हैं? बिकॉज हमें रेंज रूल आता है, हमें पता है कि वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड, तो हमें सेल करने की जरूरत नहीं है. हम लोग 150-200 से किसी टाइम के घुसे हुए लोग हैं, वहीं से घुसे हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये पता है कि हम लोग किस रेंज में अभी तक हमारा धंधा चल रहा है. तो ये सारा मोमेंटम हम लोग यहाँ पे जब रेंज शिफ्ट हुआ था हम लोग एंटर किए थे 150 और 200 के पास. अभी तक हम इस ट्रेड में एज इट इज बने हुए हैं. हमने कभी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करी, बिकॉज वी आर इन अप ट्रेंड बेसिकली. एंड अप ट्रेंड चेंजेस लॉन्ग टाइम बैक बेसिकली. दिस ट्रेंड चेंजेस समवेयर इन 190 130 के आसपास ये ट्रेंड चेंज हुआ होगा कहीं पे. एवरीबडी एग्री? ये वाला. So it will be difficult for me to go in a particular spot or something like that. So mota mota, you need to practice. Okay, 60-40, any other. Let's say Reliance ले लीजिएगा. Let's say Yes Bank ले लीजिए, जो 0.5 से 0. So if you know RSI, you will not be part of this bloodbath, na, here. So historically अगर आप जाओगे तो आप इसका पार्ट नहीं बनोगे ना इस ब्लड बाथ का, बिकॉज यहाँ पे आप क्यों एवरेज करोगे? ट्रेंड चेंज हो गया, 60 के आसपास जाके हर बार सेल ऑफ हो रहा, 60 के आसपास सेल ऑफ हो रहा, सो यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस ब्लड बाथ ना. यू विल नॉट एवरेज ऑल्सो ना. और पुराना चले जाओ हिस्टोरिकली, जैसे वीकली चार्ट देखिए, वीक सो सेम अप्लाई टू वीकली ऑल्सो. whatever the theory we are talking, it you can apply any time frame basically, whatever the six. So आपको रिमेंबर क्या रखना है, इस 80-40 इज अप ट्रेंड, 60-20 इज डाउन ट्रेंड. 80-40 में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या मार्केट पे अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को सेव रखेंगे. 60-20 में विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू सेल, और मे बी कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रेंड, और मे बी री एंटर टू द ट्रेंड बेसिकली. सो इनफाइनाइट जो कहते हैं ना लोग, लाइफ लॉन्ग बचे रहेंगे, लाइफ लॉन्ग हम लोग ट्रेंड में रहेंगे, लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं होता. आप रेंज रूल के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो विल मेक मनी, एल्स you will not be successful in that actually. So if you see Nifty itself, कोरोना के बाद से कब निफ्टी ने अपना गेम चेंज किया? जस्ट ट्राई टू सी. So same change, this apply for indicator also. We are in uptrend. People are coming when I'm about to finish actually.
Okay, so we can apply we can apply this range rule to any market, any index, any commodity. Can you mute yourself? Somebody is actually mic is on. Kidding me? Can you come again? Which can I did not get your questions. Can you come again? Your voice is breaking, and I'm not very sure what you're saying. Which candles? No, candles are different actually. So you can have a candles, you can have a OHLC, whatever. You can have any kind of candles. So candles is not candles was also price, no? So candle is just way of representing. It could be candle, it could be line, it could be OHLC because candle has no calculation. It's on price का high or low के base पे ये calculation होता है ना. So it's nothing whether it will work on any kind of a candle basically. Because candle is just one way of representing the price card move. It could be candle, it could be OHLC, it could be whatever you're telling the candle name actually. It could be that actually. So I use just a simple OHLC and a candlestick pattern. But this chart का रिप्रेजेंटेशन एंड दिस चार्ट का रिप्रेजेंट है नो मीनिंग ऐसे आप यहाँ पे कैंडल रिप्रेजेंट करो या OHLC करो बिकॉज दिस इज इंटरनल कैलकुलेशन ऑफ प्राइस हाई एंड लो ऑफ लास्ट 14 days. Thank you. So this was the basically fundamental things which we wanted to discuss. So अब आपको क्या करना है कि you just practice and pull out some chart, see कि यहाँ वाले momentum में क्या चल रहा था, are we in what trend we are in actually over here. यहाँ पे 80-40 में एवरीथिंग वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एवरी सेल वाज अपॉर्चुनिटी. जब हम कोरोना टाइम में चल रहे होंगे पीछे जाएंगे तो यू विल सी कि हमें डाउन ट्रेंड में थे यहाँ पे तो एवरीथिंग वाज अ सेल अपॉर्चुनिटी है. सो इस तरह से यू कैन इनलाइन योर ट्रेड एक्चुअली. सो बिकॉज यू आर इन 80-40 60-20. पहला चार्ट खोलोगे सबसे पहले ये देखो कि हम लोग किस ट्रेंड में हैं. 80-40 में है, अप ट्रेंड है. 60-20 में है, वी आर इन डाउन ट्रेंड. So based on what kind of a trade I am in, I should inline my trade accordingly. अब आप guys you should practice it and check कि 80-40 में क्या हो रहा था, 60-20 में क्या हो रहा था, and you inline your trade accordingly. Okay, I think theoretically we are done. Practically we are done. I think I can open a, floor for a questions. I can take few questions. A generic question, not any specific to one particular trade or anything like that. So you can ask if any questions. I think there are some. Yeah, first tell your name and then please go ahead. No, so Andrew have not written any book basically. Some books use Andrew's reference, but there is no book in the market which describe Andrew's work. So there are some. So when we were a student, we got some material from Andrew and his mentorship basically. So there is no as such book over there. There are some fake PDF going on, pirated PDF and all this. Yeah. So there is nothing. Because I don't know any book, so I won't be able to recommend anything. Actually, I could not find any good book based on RSI. Actually, one I found out was very mathematical, all calculation and all those. So that you'll be more confused. Actually, I don't remember the name of the book also, but that was too complicated, and we don't need that mathematical calculation actually. Internally, कैसे क्या होता है. So I could not find any book on this subject. To be very frank, actually, particularly which is related to Endu's work. You may find some PDF in the market, which some people are putting on internet and Google and all those stuff. So this is it. So if you're seeing any book in the market, I think that's a fake actually. So Andrew never written any book. One book
There is a reference, one writer written over there, but you won't find that. It's out of publications actually. That's not written by Endo. So, 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 Sonal, what? So, Sonal, I don't think so. There is any material because the Endu was a specific person. Actually, he customized RSI based on his findings. Actually, after 40 years of his floor experience. कुछ लोग हैं आई थिंक वन और टू ट्रेडर्स विच सेल द एंडूज वर्क ओके कुछ कुछ कस्टमाइज करके लोगों ने भेजा है लेकिन उनके बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे पास आए हैं दोबारा से पूछने के लिए समझने के लिए सो उन्होंने क्या दे लर्न व्हाट दे अंडरस्टैंड आई एम श्योर देयर माइट बी समबडी इन दिस कॉल आल्सो दोस हु लर्न फ्रॉम सम XYZ पर्सन आई डोंट नो द नेम एंड ऑल दिस स्टफ तो कुछ लोगों ने सीखा एंड्रू के नाम से कुछ लोग सिखाते हैं कुछ लोग करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट दे हैव लर्न बट इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा इट्स नॉट डिफिकल्ट अब आपकी क्या कीजिएगा तो आई रन ए मेंटरशिप प्रोग्राम दैट्स अ 6 to 7 week program basically and then I go in entire detail actually so that's and I go 101 basically but I'm not asking anybody to join me for mentorship program this call was not that purpose actually so one of my student actually in the call itself maybe here so इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस करें और अब आप जैसे कैसे रिलेट करेंगे आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस बेसिकली जैसे आप 80-40 वाली रेंज में देखेंगे ना तो 80-40 में देखिएगा ब्रेकआउट कितने सक्सेसफुल होते हैं फॉर योर एक्सरसाइज तो दिस इज हाउ मेंटरशिप वर्क ना जब तक दैट्स व्हाई माय मेंटरशिप टेक 6 weeks देन 3 months 101 सपोर्ट बेसिकली बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकल चीजों को नहीं देखोगे तब तक कोई मतलब नहीं है ना चीजों का nobody you cannot learn it from PDF or anything that's why I could not have spent 3 years with Endo if I would have learned everything from PDF basically तो इसमें क्या आप इसको एवरीबॉडी दोस हु आर इन दिस कॉल व्हाट यू कुड डू लेट्स से आपने मूविंग एवरेज डाला किसी चार्ट पे ना let's say what moving average you're using let's take an example for others benefit and don't worry about it there's no right or wrong we are discussing a case study over here thus I'm trying to help you guys so इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करें करना चाहिए 20 and 50 सो जब 20 और 50 20 क्रॉसिंग ऑफ 50 ना लोअर टाइम मूविंग मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग द हायर टाइम मूविंग फ्रेज तो आप उसमें बाई बाई सिग्नल देखते हो ना कि आप कौन सा वो बोलते हैं कौन सा गोल्डन क्रॉस ओवर सम नाम मुझे कुछ नहीं पता हाँ जो भी है आई डोंट नो द नेम एंड ऑल्सो बिकॉज आई कीप माय लाइफ वेरी सिंपल एक्चुअली मुझे कैंडल्स के नाम भी नहीं पता होते कौन सा हेलन की है या कौन सा वो 50 कैंडल तरीके है ना बट मैं देख के समझ जाता हूँ कि कैंडल बुलिश कैंडल का पैटर्न है या बियरिश कैंडल का पैटर्न है बिकॉज बट आई डोंट रिमेम्बर दैट 30 नेम ना दैट जापानीज नेम एंड ऑल दो सब एनगल्फिंग और वो दोस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज मुझे पैटर्न पता लग जाता है क्योंकि आई लर्न ऑल सो अभी आपको क्या करना लेट्स से आपने 20 क्रॉस 50 हो गया मान लिया आपका ना आप सेम चीज को नोटिस करेंगे जब 20 क्रॉस 50 करेगा उससे पहले रेंज भी शिफ्ट हो चुका होगा आई एम 100% श्योर अबाउट इट मोस्टली 100% हो जाएगा 100% हो जाएगा तो आपको दोनों तरीके से कंफर्मेशन मिल गया कि आपका अप ट्रेंड हो गया सो एवरी अपॉर्चुनिटी टू पुल बैक अब आपको जब मूविंग एवरेज मिल गया लेट मी गिव यू द रियल सिनेरियो लेट मी हेल्प आपको मान लिया मूविंग कौन सा मूविंग एवरेज आप यूज करते हैं जरा बताएंगे अपनी ये में नंबर क्या है इनपुट क्या है 20 लेट्स से 20 and 50 so I'm helping you to have a practical knowledge okay hope you will like it okay तो 20-50 ने यहाँ पे इसने क्रॉस किया
जब क्रॉस किया तो साथ में रेंज शिफ्ट भी हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सेम टाइम में रेंज भी शिफ्ट हो रहा है, 60-20 वाला रेंज में जा रहा है ना, 60-20 से 80-40 वाली रेंज में भी शिफ्ट हो रहा है ना। अब 80-40 में रेंज में शिफ्ट हो गया तो आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने ट्रेड को, कि आपने पता है कि आरएसआई जो है पीक पे चल रही है अभी ना, नाउ यू वेट फॉर सम पुल बैक ना, बिकॉज आप समझ में आ गया रेंज भी शिफ्ट हो गया 20 ऑफ 25 वट एवर मूविंग एवरेज यूजिंग, आई एम यूजिंग लिटिल लोअर टाइम फ्रेम्स बेसिकली, सो आई कैन फाइंड अ ट्रेंड लिटरली। अब दोनों चार काम हो गए ना, आपका रेंज भी शिफ्ट हो गया और आपका मूविंग एवरेज भी शिफ्ट हो गया, तो नाउ यू आर 100% डबली श्योर ना। और किसी को कैंडल स्टिक पैटर्न आता होगा उसको यहाँ से भी कुछ मिला होगा, आई थिंक इधर से बुलिश कैंडल पैटर्न ना, सम दिस ब्रेकआउट भी है, रेंज भी शिफ्ट हो रहा है और कैंडल भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? अब आप या तो इमीडिएटली कर लीजिएगा या पुल बैक पे एंट्री कर लीजिएगा, आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे ना। अब इस केस में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि शैल आई राइट दिस एंटायर मूव और शैल आई वेट, बिकॉज नाउ यू नो एवरीथिंग इज बुलिश नाउ, सो यू विल नॉट यू नो वो दाना खा के निकल जाने वाली बात बोलते हैं ना, नाउ यू विल एंटायर एंजॉय दिस एंटायर मूव ना, 1500 लेके 15,000 वाला जो एंटायर मूव यू विल एंजॉय ना। तो वी कैन हैव अनदर शेयर आल्सो, लेट्स से इंडेक्स इज डिफरेंट बिकॉज इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, लेट्स टॉक अबाउट आईटीसी और मे बी सम अदर एक्स वाई जी। आप जैसे देखेंगे ना आप सोनल, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है ना। तो इस तरह देखो क्या होता है ट्रेडिंग में, देयर इज नो वन रूल वर्क्स, ट्रेडिंग ऑल अबाउट फीलिंग एक्चुअली। आप कितनी सारी प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में कर सकते हो और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। आप ये कोशिश करते हो कि कितने फेवरेबल कंडीशंस आपके फेवर में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इज मच हायर देन फेलिंग। बट एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1% ऑफ फेलियर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ 1% ना, फेल हो सकते हैं ना। जब फेल हो जाते हैं तो हमें ट्रेडिंग में ये पता होना चाहिए फेल होने की कंडीशन में हमें क्या करना है और सक्सेस होने की कंडीशन में हमें क्या करना है। फेल होने की कंडीशन में हमें स्टॉप लॉस बुक करने ना, अगर हम राइट हैं तो फिर हम पूरे राइड को एंजॉय करना है, हमें अर्ली नहीं निकलना। एग्री? उस उस पे पैसा बनता है। और कोई आप प्लेन भी देखो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी टुक लिटिल अर्ली टाइम बिकॉज वी डिडंट हैव अ गुड इनिशियल डेज मेंटर ना। और हमें इस तरह से नहीं हुआ, एंड्रू सर ने तो हमें पीडीएफ दे दिया था, हम पढ़ो उसको, बाद में हमने उनको $200 दे दे के हम उनकी क्लास अटेंड करते, सिमिलर काइंड ऑफ क्लास व्हेन ही यूज्ड टू डिस्कस द सिनेरियोस लाइक दिस, वी यूज्ड टू पे हिम एक्चुअली। सो उसमें क्या होता है कि जब आप ये सब सिनेरियो देखोगे ना, एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल लर्न एक्चुअली कि किस तरह से ये सारी कहानी मूविंग एवरेज, आप कुछ भी नहीं है प्लेन मूविंग एवरेज से पैसा कमा सकते हो। लेट्स सी माय मूविंग एवरेज। ये मैं सब हटा देता हूँ, मान लिया एक्सपी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ना मेरे पास ना आरएसआई है ना कुछ है, मूविंग एवरेज। ठीक है, इस मूविंग एवरेज के बेस पे आप खूब पैसा कमा सकते हो। जब 9 क्रॉस 45 करे आप बाई कर लो, जब 9 क्रॉस नीचे 45 करे आप खूब पैसा यू कैन मेक। ठीक है, बिकॉज आप एक रूल फॉलो कर रहे हैं। कहीं कहीं कंफ्यूजन आएंगे, इट्स नॉट दैट देयर विल बी कंफ्यूजन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल राइड अ वेरी लॉन्ग ट्रेंड एंड इवेंचुअली यू विल बी इन प्रॉफिट। ऐसे ही सेल के केस में देखेंगे, सो सेल आल्सो विल बी इन अ सिमिलर सिचुएशन। और इस चीज को आप नीचे वाले ऊपर वाले चार्ट को अगर नीचे वाले चार्ट से कोरिलेट करोगे तो रेंज रूल से करोगे तो आपका सक्सेस ऑफ योर क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड चांसेस ऑफ सक्सेस इज मच हायर। एग्री? एवरीबडी एग्री? तो ट्रेडिंग से इतना डरने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग इज नॉट ए गैम्बलिंग, वी प्ले विद द रूल्स। अगर आप कहीं ट्रेड में हैं तो क्यों आपको जबरदस्ती करना है, आप अपने रूल को फॉलो करो, वॉट एवर रूल यू फॉलो। अगर आप 80-40 वाली रेंज में तो बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढो ना, आप क्यों शॉर्ट करना चाहते हो? किसी ने टीवी पे बोला कि शॉर्ट कर दो, हम शॉर्ट नहीं करेंगे ना, हम इस वाली कंडीशन को नहीं, वी डोंट वांट टू ट्रेड दिस वन, वी वांट टू ट्रेड दिस वन, दिस वन। एग्री? हम ये शॉर्टिंग, हम हाँ मेन हमारा मेन पर्पज है हमें लंबा ट्रेड लेना, हमें ये हमें आपको कोई ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी कि हमने 20 पॉइंट का 30 पॉइंट का ले लिया, हमें ये वाला ट्रेंड एंजॉय करना है, दिस दिस ट्रेंड वी वांट टू एंजॉय दिस वन।
दिस वन वी डोंट वांट टू एंजॉय दिस ट्रेंड एक्चुअली दिस स्मॉल वन. यहाँ पे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे बिकॉज यहाँ पे 10 रुपए कमा रहे हो, यहाँ पे आप 1000 रुपए कमा रहे हो. सो वेट, maybe it could be a wait for 10 days, it could be wait of 15 days, wait and relate with this your trade with the lower chart whether now you know. I think everybody will be clear. I sure I tried my best to explain you guys. I'm not sure whether it was a good or bad or whatever it is, but this was some information, some piece of information, which is a very powerful in the market, and Andu has given to the traders range rules: 80-40 uptrend, 60-20 downtrend, and around if any stock is struggling to go around 60-65 up to 70, this is a early sign exhaustion. If we are in downtrend, something is pressing every time 45, this is early sign we are going to up. Simple. So I'm sure it will help you guys. Anyone else? Thanks. Yes, please. Yeah, I can hear you. That's why I said it's applicable for early kind of RSI basically. So अगर अगर थोड़ा टाइम फ्रेम आप थोड़ा कम करेंगे ना तो अर्ली ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड हो जाएगा. जब थोड़ा टाइम कम कर देंगे ना जल्दी ओवरबोट 80-20 जल्दी आ जाया करेगा ना उस केस में. एंड नो, various study has shown the 14 is the best optimized time, but you can use Andu used to use 25 for commodities actually. RSI 25 for commodities only gold, silver, and coffees. But no, I never mention it over there. That could be a moving average actually. No, not RSI. I by default use RSI 14 as a default actually because I'd see लाइफ में कंफ्यूज नहीं होने का ना, एक चीज को पकड़ो उसको मास्टरी कर लो. जो RSI 14 पे आएगा, वट एवर RSI 40, प्लीज गो. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, बट उसमें अगर SMA 3 में लेट मी शो, अगर इसमें RSI 3 कर दूंगा मैं, मुझे शॉर्टेड पीरियड पे टाइम पे करना है. आई थिंक इट्स CFJ actually. तो उसमें सो इसमें क्या करोगे, आपको बहुत जिग जैक मिलेगा, जल्दी ओवरसोल्ड हो जाएगा, ओवरबॉट हो जाएगा, रेंज जल्दी जल्दी नेगेटिव, क्योंकि टाइम छोटा है ना, तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड और रेंज भी शिफ्ट अर्ली होगा ना. तो इट विल मेक यू मोर पैनिक एक्चुअली. जल्दी जो छोटे टाइम के लिए ट्रेड करना है, एक दिन के लिए ट्रेड करना है, छोटे टाइम के लिए दे कैन यूज एक्चुअली, बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे रेंज शिफ्ट हो रहे होंगे ना. So depends on what kind of a time frame, what kind of a trader are you, and accordingly. But I use for a, RSI 14 by default actually. So I don't want to confuse myself, and I don't want to get. I had done all kind of experiment initial days when I was young trader 4 years back. So I used to do all kind of experiment. पर मुझे समझ में आ गया कि जितना ज्यादा confusion लाइफ में रखोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. No, no, no. So no, 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 no. So
what it does actually, so ये जो 60-20 वाला रूल है, जब रेंज शिफ्ट होता है तो अराउंड 20-25 के आसपास जब पहुंचता है, वी कॉल इट एज रेंज शिफ्ट हुआ है आइडियली। most of the time up to for 33.5 up to 66.7, 33.3 up to 67, अगर 33.3 100 में से घटाएंगे तो जो भी नंबर ऊपर आता है अप टू लेवल दैट्स नॉट अ रेंज शिफ्ट, स्टिल इन डाउन ट्रेंड। अप टू 33 से नीचे जब आरएसआई जाना हो वी कंसिडर वी आर इन डाउन। सो अगर ज्यादातर टाइम देखोगे ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट इंडू थ्योरी, दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। जनरली इंडिया वाला जो पर्टिकुलर आरएसआई 33 के आसपास काफी टाइम तक आता है। This is my own experience. This is not don't take it word. This is my experience to working with the Indian market. हम लोग 33.3 के आसपास काफी आते हैं, 40 की बजाय ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 40 के आसपास सपोर्ट मिलेगा ना, बट जनरली आई वेट अप टू 33 तक भी मैं उसको 40 के आसपास वाला ही समझता हूँ, अप ट्रेंड समझता हूँ। ऊपर 67 तक भी मैं उसको अप ट्रेंड नहीं समझता, स्लो ट्रेंड नहीं समझता हूँ। अगर ऊपर 70 से क्रॉस करता है, नीचे 33 से क्रॉस करता है, देन आई बिकम अलार्मिंग सिचुएशन। So these kind of things you will learn when you practice ना, because theory में बहुत आसान लगता है, ऐसे you feel everything बड़ा simple सा होगा, लेकिन जब आप practice करेंगे then real challenge will start coming over here. Yeah, I use it for everything actually. I just know RSI, I don't know anything else. I master myself RSI and I master up to PhD level to very frank. So इसमें इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब कहाँ इसको ऑप्टिमाइज कहाँ करते हैं? अब रेंज रूल तो बेसिक फंडामेंटल पता लग गया ना कि 80 और 40 के बीच में अप ट्रेंड है, 60-20, जैसे मैं सोनल को समझा रहा था ट्रेड कैसे लोगे। अब ट्रेड में अब इसको फर्दर रिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से देहरादून जाना है, लेट्स सपोज यू वांट टू गो टू देहरादून। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि आपको कार से जाना है या उससे जाना, तो यू विल फर्दर अप्लाइंग रूल्स ना, कि आई विल टेक ए कैब, देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन आई विल टेक ए कार, देन आई विल टेक समथिंग, सो यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर ऑप्शंस ना। हेलो, कैन यू गाइस हियर मी? So now you got the you got the high, सो यू गॉट द हाईवे नाउ, 80-40 वाला हाईवे मिल गया, लेकिन अब इसके सिंपल बेस पे ट्रेड लेने के लिए यू विल अप्लाई मूविंग एवरेजेस, यू विल अप्लाई सो मेनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू टेक अ ट्रेड एंड ऑल दोस थिंग, एंड दोस कुड बी एनीथिंग एक्चुअली, इट कुड बी a candlestick pattern, this could be moving averages, so we use many other filters to be very frank. So this is more complicated subject which I take around 6 weeks, that's why I said no, it takes 6 to 7 weeks and 3-4 months to hand holding the one particular condition, because this is a lengthy subject, but you can correlate with your studies with the schedule and it will gonna help you guys. At least अगर आपको रेंज रूल पता है तो आप गलत ट्रेंड में नहीं फंसोगे ना। सो यू विल बी ऑलवेज अलाइन योर सेल्फ विद द मार्केट बेसिकली। अब आपको पता है हम लोग किस ट्रेंड में है। पहला सब्जेक्ट कोई भी नाम आप मुझे कोई भी बोलोगे, एक्स वाई ए बी सी डी, मैं पहली चीज देखूंगा मैं किस ट्रेंड में ज्वाइन में कर रहा हूँ। मेरा पहला फर्स्ट थिंग देखते के साथ एक फ्यू सेकंड में मैं आइडिया लगा लेता हूँ वी आर इन विच ट्रेंड वी आर इन। फर्स्ट थिंग आई सी इन द चार्ट विच ट्रेंड वी आर इन, 80-40, 60-20, that's the first milestone for me to analyze the chart। अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मैं देखूंगा 80-40 में है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा उस चार्ट को। आई विल नॉट इवन गिव अ डैम टू दैट पर्टिकुलर चार्ट। अगर मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है देन आई विल सी 60-20 वाली रेंज में चल रहा है या नहीं चल रहा है, देन ओनली। अगर मुझे कोई मजबूरी में कोई ट्रेंड लेना है, मुझे अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है या फैंटेसी सेटिस्फाई करनी है, तो मैं बहुत क्विकली लेके बहुत क्विकली निकल जाऊंगा, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड बेसिकली। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? यस प्लीज।
बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, आप खोलोगे तो आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। ये रहा यहाँ पे ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना बार बार 70 के आसपास, देखो ना, इवेंचुअली प्राइस गिर गया ना नीचे। नहीं, डाउन यहाँ रेंज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ 40 के आसपास हो रहा है ना कंसोलिडेट, यहाँ पे हर बार 40 के आसपास कंसोलिडेशन होना चालू हो गया ना। दिस रियल एग्जांपल, दिस आई सेड, जब प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चालू हो गया ना, वी आर इन डाउन ट्रेंड, स्टिल 60-20, बट आप देख रहे हो 40 के आसपास यहाँ पे बार बार कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे 20-25 तक नहीं जा रहा है। उसके बाद इवेंचुअली प्राइस ऊपर चला गया ना यहाँ पे, यहाँ पे। सो ये चीजें जब प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे देखो 60 के आसपास प्राइस तो हायर हाई जा रहा था, यहाँ पे देखो, दैट्स अ गुड एग्जांपल। यहाँ पे हायर हाई जा रहा था, लेकिन आरएसआई लोअर लो बनाती जा रही थी 60 के आसपास, इवेंचुअली फॉल आया ना मार्केट में। सो जो पिछली बार जो बड़ा फॉल आया था ना, अभी रिसेंटली काफी, जो इस अप ट्रेंड से पहले एक फॉल आया था ना पीछे, जो काफी मार्केट गिरा था। सो एंडू वाज अलाइव, सो वी प्रेडिक्टेड, ओके मार्केट का पूरा गड़बड़ हो गया, बिकॉज 60 कोई भी एनएससी निफ्टी 50 या कोई भी स्टॉक 60 से ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था। वो हमें लग रहा था कि मार्केट का हो गया, बाद बड़ा बच गया। और मैंने ट्वीट भी किया था दैट टाइम कि मार्केट का टॉप शायद बन गया है। उसके बाद से हम काफी गिरे थे, तो जो पुराने वाला जहां से हम लोग स्टार्ट किए, तो पुराने वाला फॉल है। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, ये हमने जब डाउन से अब हम अप की तरफ चले, तो आई वाज वेरी ओपनली रिटन ओवर देयर, वी आर मेकिंग बेस बेसिकली। आई एम श्योर सम ऑफ माय फॉलोअर माइट बी नोइंग दैट एक्चुअली। वो हमने इसी बेस पे निकाला था कि यहाँ पे बहुत लंबा निफ्टी कहाँ पे, यहाँ पे क्या था, बहुत लंबा सपोर्ट मिल रहा था, और बार बार 60 के आसपास यहाँ से क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का सपोर्ट था, और यहाँ पे ये सब एनालाइज करने के बाद हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगा। तो वी प्रोडक्टिव के शायद ये एंड आ गया है फॉल का, ये वाला फॉल ना, ये वाला। एंड आई ट्वीटेड ऑल्सो, आई एम श्योर यू कैन चेक माई ट्वीट्स एक्चुअली। ओके गाइज, एनी फर्दर क्वेश्चंस? आरएसआई की कहानी दोस्त ये है, let me go to end basically। हम लोग यहाँ पे एंटर किए थे, हम लोग कल ट्रेड को चेंज करके भी आई हैव ओपन अ शॉर्ट ट्रेड बेसिकली। अभी आप देखोगे, नॉट वी हैव आवर ओन प्रॉपर्टी, अनदर रिफाइनिंग, वी कॉल इट एज CFG1। यहाँ पे देखोगे तो डाइवर्जेंसेस आफ्टर डाइवर्जेंसेस बनाता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि टाइमिंग के लिए शायद टॉप बन गया अभी। देखो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे डाइवर्जेंस आफ्टर डाइवर्जेंसेस। सो अगर ये पुराना हाई नहीं तोड़ता ना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी आर डन फॉर द टाइम बीइंग एक्चुअली। और सपोर्ट जो है, अगर ये डाउन गिरना चालू हो जाता, तो सपोर्ट विल कम समवेयर हेयर एक्चुअली, 19,540 के आसपास। और हमने क्यों किया था, लेट मी शो यू। मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेड में कैसे लेता हूँ, दिस इज माय ट्रेडिंग। सो हम लोग यहाँ पे एंटर किए थे, मैंने ट्वीट भी किया था, वी एंटर हेयर 15,400 पे। आई ओपन ए लॉन्ग ट्रेड 19,540 पे, मैंने लॉन्ग ट्रेड ओपन किया था परसों में, या कल जो भी था। मैं यहाँ पे निकला, और यहाँ पे मैंने मेरा शॉर्ट ट्रेड ओपन किया, मैंने बाई को सेल कर दिया यहाँ पे। बाई को सेल करके मैं यहाँ 4,000 रुपीज पर लॉट पे मैं सोने चला गया यहाँ पे बंद करके। जब मैं उठा 3:25 के आसपास, तो तब मेरा 700 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट रह गया, बिकॉज ये मूव अचानक से आ गया ना ये वाला। सो मेरा रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, निफ्टी के लिए कुछ नहीं सोचता हूँ। हम वी गो विद मैकेनिकल। जब ये मेरी वाली लाइन, ये मेरा अपना कॉन्फिडेंशियल है, जब ये वाली लाइन अपर क्रॉस करती है, इसका जो नियरेस्ट हाई होता है वहां पे मैं बाई लगा देता हूँ। यहाँ पे अपर बाई यहाँ पे था, नियरेस्ट हाई यहाँ पे था। गॉट इट? सो अब जब तक ये नीले वाली लाइन ऊपर रहेगी, मैं ट्रेड में रहूंगा।
यहाँ पे इसने टच किया लेकिन नीचे नहीं आई, फिर ऊपर चलता रहा, वो क्या यहाँ पे टच करने की कोशिश करी तो नियरेस्ट लो ये था, तब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया नहीं हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर। कल जब नीचे किया तो नियरेस्ट लो पे यहाँ पे मेरा ट्रेड जो है बाय बिकम सेल, सो आई एम इन शॉर्ट ट्रेड राइट नाउ एंड आई कैरी फॉरवर्ड ओवर द वीकेंड। अब मंडे को मुझे नहीं लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब ये कहाँ जाएगा, मैं कोई अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, ये ऊपर चला जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा, अगर ये डाउन होगा तो माय ट्रेड विल कंटिन्यू बाय द टाइम दैट कंडीशन डजंट मीट अगेन कि अब जाके यहाँ के हाई पे मैं स्टॉप लॉस लगा। सिंपल। सो ये 300-400 पॉइंट का ट्रेड हम लोगों ने लिया है, जितना भी पॉइंट होगा ये, आई डोंट रिमेम्बर दैट। उससे पहले हम लोगों ने काफी सारे बड़े ट्रेड लिए हैं। वी हैव, सो बेस्ड ऑन इट्स अ टोटली मैकेनिकल सिस्टम। नीचे मैं आरएसआई यूज करता हूँ, ये आरएसआई मुझे किस चीज का इंडिकेशन, मैं सोच रहा था मैं, ये आरएसआई जब मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, जब ये 60 से नीचे जाती है तो मुझे अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट में अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, सो वी आर अबाउट टू फॉल। जब ये 60, जब मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है तो 40 के आसपास की आवाज आ रही है। कैन एनीबडी म्यूट? आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम एक्चुअली, सम वॉइस। या अगर मेरा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, बस वो एक्चुअली दस टोटली माय ओन सब्जेक्ट एक्चुअली, डीप आरएसआई सब्जेक्ट लेट्स से, बट मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ, बट डोंट गो एज इट इज लाइन बाय लाइन, ओके। अगर मान लिया मेरा ये वाला, मैं लॉन्ग ट्रेड में हूं ना, ये जब 9 क्रॉस 45 करता है ना, उसके बाद जो लोवेस्ट होता है मैं वहां पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, अगर ये मेरा ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं इसके बाद ये यहाँ मुझे कुछ इंडिकेशन आने चालू हो जाएंगे, जिनको थोड़ा बहुत आरएसआई होता है, यहाँ पे एनआरपीआर मिलना चालू हो जाएंगे, जब पहला एनआर मिलेगा ना टाइम चेंज के बाद, उसके बाद मैं उसके स्टॉप लॉस आगे निकल जाऊंगा। जैसे कोई दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे नॉट द राइट एग्जांपल, माय इन्वेस्टमेंट, सो दीज आर करंट माय वन ऑफ फ्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। सो जैसे मैंने ये एक एस्पार्सी का है ये कंपनी ना, सन फार्मा समथिंग लाइक दैट। सो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड खोला, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग गए, यहाँ पे रेंज भी शिफ्ट हो रहा था, जब यहाँ पे क्रॉस किया तो आई बॉट इट ओवर है 2001 पे। आई थिंक मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 2003 पे या कहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था, क्योंकि आई पुट, बिकॉज आई यूज ए निंजा ट्रेडर, सॉरी ट्रेडिंग व्यू, नॉट ट्रेडिंग दिस वन, इंटरेक्टिव ब्रोकर। सो मैं इसमें ये फैसिलिटी होती है, एक बार ट्रेड लगा दो तो यू कैन पुट अ ट्रेड अप टू इयर्स एक्चुअली, अगर मैं चाहूँ तो अब से 1 साल बाद का भी यहाँ पे ऑर्डर लगा सकता हूँ इसमें। ठीक है। सो जब ये क्रॉस किया तो मैंने इसके टॉप वाला लगाया, वो नहीं हुआ क्योंकि फेक था, तो ये नीचे आ गया, फिर इसने दोबारा क्रॉस किया तो मैंने यहाँ के टॉप पे बाई लगा दिया, कंटिन्यू एंड इट्स कंटिन्यू नाउ इट्स मेकिंग, जिनको आरएसआई आता है यहाँ पे पीआर पे पीआर मिल रहा है, तो आई एम होपिंग दैट इट शुड गो 250 और समथिंग लाइक दैट, सो आई विल राइट दिस एंटायर ट्रेंड। These are the investment, these are not, these are my investment basically। बीएससी हम लोगों ने बहुत अच्छे, बहुत सारी चीज हो रही होंगी, जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज हो रही होंगी, इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, यहाँ नीचे बहुत सारी चीज हो रही होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाई वी टेक 1 मंथ टाइम फ्रेम टू एक्सप्लेन दीज 3 चार्ट्स ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जब जो चीजें, बिकॉज प्राइस तो मास्टर है ना, भगवान तो प्राइस ही है ना, तो जब यहाँ पे कुछ हो रहा होगा तो यहाँ भी कुछ कुछ हो रहा होगा उसी टाइम पे ना।
इसके साथ हो रहा होगा, प्राइस माइट बी स्टार्ट टर्निंग, लेट्स से जब ये डाउन होना चालू होगा तो बहुत सारी चीजें चार्ट पे और भी बहुत कुछ हो रहा होगा ना। थोड़ा स्लो है। स्लो है एक्चुअली माय सिस्टर, दिस इज अ प्रॉब्लम विद दिस निंजा ट्रेडर, इट इज वेरी स्लो एक्चुअली। मैं क्लिक कर रहा हूं तो उसका रेस्पॉन्स 10 सेकंड बाद आ रहा है। I cannot do I cannot do anything because the problem is with the Ninja Trader. This one Trading View. It's a slow. Actually, system itself is slow. I'm putting and then it's taking too much of time because I don't know, because it's a cloud-based system, no? But what is not able to relate. So here the because main topic is here just to stick yourself to the 80-40 wala range actually is because the rest of the things we are discussing is a bonus thing actually. So problem is with this, let's say I click it, now it is taking 10 seconds to move actually. By the time what I'm saying you might not be able to hear it actually, and I have moved to something else. System is very slow, I don't know why. I have a very high quality computer also, so it looks like it's a problem with the Ninja Trader. One command is taking 10 to 15 seconds actually to execute. Okay, guys, any other questions? So focus on this 80-40-60-20 wala rule and try to observe this in chart. I think it will help you. That was my main intention to tell you today, guys. So another good pick was a McDonald's actually. So now they click on McDonald's. So now it will open the chart after 10 seconds. You see, it's very slow in the chart actually. That's not my fault, my dear friend. So ITC was another, this one, McDonald's was another great example. We entered at the right time. So any other questions, guys? I think we have exceeded the time limit almost double. Actually, we're supposed to close at 8:30. Now it's about to be 9:15 or so. Anything else, sir? Guys, anything else? This is my Twitter handle. So I keep posting lots of ideas over here. Oh, that's, I think that's problem with this computer has gone slow because of this conf call. You see, you can send me message over there actually. So I think my computer has gone tremendously slow. I don't know why. See, it's taking too much of time. So you can write me, you can call me on this number. Let me write down my number if you want to reach out to me to verify. This, so this problem with the chat. Where is it? This is, my computer has gone tremendously slow, maybe because of this call or something like that. Some typing. Any other question, friends? Hope you like it. Any feedback? बताइए. मैंने किया था 2 दिन 2 लोगों का काम लेके 2 days एक्चुअली आई शोड दिस डे ट्रेडिंग वाला जो किया था ना मैंने
सो बिफोर मूविंग टू माय विपासना ना, मैंने दो लोगों को मैसेज भेजा था, दो लोगों ने मेरे साथ 2 दिन काम किया, तो वो मैं उसमें यही करता हूँ, जो ये वाला चार्ट है ना, जो डे ट्रेड करते हैं निफ्टी वाला, जो मैकेनिकल, उसमें मैं अपने साथ कुछ लोगों को कभी कभी लेता हूँ। तो उसमें आपका लक है 2 दिन में कोई भी ट्रेड ना मिले, बिकॉज मेरा लास्ट फ्राइडे से चला हुआ ट्रेड लास्ट फ्राइडे को ही खत्म हुआ, 1 हफ्ते पूरा चला, तो हो सकता है यू विल नॉट गेट इवन अ सिंगल ट्रेड ड्यूरिंग दैट डे. It was just for fun actually. I get bored, so I call somebody, and that's you guys. I actually forgot the name actually. I put on my Twitter. देखते हैं सर, विल डेफिनेटली कंसिडर। जो भी मैं करता हूँ तो मैं ओपनली लिखता हूँ, जब कभी मुझे थोड़ा चैरिटी करने का मूड करता है तो आई कीप राइटिंग ऑन द माय ट्विटर हैंडल। आई डू लिटिल बिट ऑफ चैरिटीज, so and my main purpose is everybody should know actually. So rather than looking for help from others, you all should be independent enough actually. आप रेंज, नहीं नहीं, ऑप्शन देता है मेरे, पीपल कीप राइटिंग मैसेज, मेरे बहुत सारे मैसेज आते हैं डेली से, thousands ऑफ मैसेज एवरी डे आई गेट। मैंने नंबर टाइप कर दिया अपना, तो ब्लूटिक से लेना देना नहीं है। मैंने नंबर भी, ये नंबर है, हियर इज माय नंबर, आई पुट इन माय नंबर इन द चैट एक्चुअली। पर ब्लूटिक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू नोटिस गाइस, तो मैं, ओ, तो ऐसा है क्या? So if you see, I don't follow any trader in this market. Okay, if you see, I don't watch TV. I don't watch any news. I don't follow any Twitter actually, any trader in this world. I used to follow my mentor. He is no more, so I don't follow anybody. So मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, मैं कोई टीवी नहीं देखता हूँ, मैं किसी का कोई रेफरेंस नहीं लेता हूँ। इट्स माय ओन पर्टिकुलर एनालिसिस एक्चुअली। So मैं यहाँ देखोगे, मैं basically follow my political friends or those kind of things, but I don't follow anybody from the share market actually. None, almost zero. This is a writer, William Green. He follows me, I follow him. So this really, guys, if you really want to read this book, this is really good book. सो इसमें 30-40 वर्ल्ड फेमस ट्रेडर्स के इंटरव्यू हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री है, किस तरह से उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर को बनाया। तो दिस इज अ वेरी गुड बुक, आई विल रिकमेंड यू, यू ऑल शुड रीड दिस बुक। ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स, एनी फीडबैक और एनीथिंग, होप यू एंजॉय। थैंक यू गैस, एंड गुड नाइट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, होप इट विल हेल्प। थोड़ा प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको हेल्प होगा। डोंट जस्ट गिव अप यार, ये क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वेरा जनरिक, इट्स नॉट अ जनरिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। आप अपने चार्ट के सामने लिख लो 80-40 60-20। 80-40 की रेंज में हमें बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, 60-20 के रेंज में से सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ओके गाइस, okay guys, good night, and it was really pleasure. Any questions, do write me on my Twitter handle. And I'm not a very known name on Twitter, so I just have 2,000 followers, so not a very big name. So I try to work on a very isolation. Okay guys, thank you.